एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके पास इस तरह का आइडिया है, इस तरह का डेटा है इसके पास। जो फर्स्ट टेबल है मैंने बताया था कि इसमें जो दो आइटम्स हैं जीन्स और टी शर्ट्स, उस पर यह प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट पर यूनिट of jeans is ₹100 and profit per unit of t-shirt is ₹80, and this is the market daily demand. Market daily demand of jeans is 100. This is maximum, means not more than 100 is required, and this is 200 of t-shirts. ये फर्स्ट टेबल में है। सेकंड टेबल shows the time minutes required for items on different service points. There are different service points: measure and marking, cutting, stitching and finishing. ठीक है। For jeans, each unit of jeans takes 10 minutes for measure and marking, 20 minutes for cutting, 30 minutes for stitching and 20 minutes for finishing, है ना। And similarly, each unit of t-shirt takes 15 minutes for measure and marking, 10 minutes for cutting, 20 minutes for stitching and 10 minutes for finishing. These are two informations. Additionally, the daily working duration is 10 hours, 8 a.m. to 20, and 2 hours off. So this is 10 hours, and total number of monthly working days is 25. It has been given. This is additional information regarding staff and salary. The company needs one manager whose salary is 20,000 per month, suppose, and since it is one manager, so total salary on the manager is 20,000. Measure and marking, there are 5 staffs, है ना, 5 staffs are needed for measure and marking. Each of salary 9,000. So total is 45,000. Similarly, for cutting, 5 staffs, each of 8,000, total 40,000. And stitching, 10 staffs, each of 5,000, total 50,000. Finishing, 10 staffs, each of 3,000, and total 30,000. And others, 3 staffs, each of 3,000, total 9,000. These are the information. Additionally, house rent including electric charges is ₹9,000 per month. Other monthly expenses, suppose 25,000. So, on the basis of this data, the company wishes to decide the number of jeans and t-shirts to optimize the profit and minimize the cost. ये जो इंफॉर्मेशन है, इसी के बेस पे अब कंपनी कितना जींस, कितने यूनिट्स जींस और कितने यूनिट्स टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करेगा कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम कॉस्ट लगे। ठीक है, यह है हमारा प्रॉब्लम। एलपी टेक्निक का हमने इस्तेमाल किया। तो एलपी टेक्निक में हम क्या करते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स को हमने सपोज किया। यहां पर 2 तरह का डिसीजन वेरिएबल्स है, एक x1 नंबर ऑफ जींस, दूसरा x2 नंबर ऑफ टी शर्ट्स। सो let us suppose x1 the number of jeans and x2 the number of t-shirts. So the total profit on the production will be
100x1 plus 80x2 because there is rupees 100 profit for each unit of jeans, and total number of jeans we have supposed x1. So total profit on jeans is 100x1 and total profit on t-shirts is 80x2 because 80 rupees is the profit for each unit of t-shirt, and there are total x2 t-shirts we have supposed. So total profit on t-shirts is 80x2, and so the total profit on the production is 100x1 plus 80x2. And we know very well that we need to maximize the profit. So this is the objective function, maximize z equal to 100x1 plus 80x2. यह हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब हम देखते हैं ये कॉन्स्टेंट्स कैसे कैसे बन रहा है। कॉन्स्टेंट्स को हम यहां पर देखते हैं। एक मैं आपको डेटा सामने दिखाकर कांस्टेंट बनाना चाहता हूं। पहला है 10x1 प्लस 15x2 लेस देन इक्वल टू 3000। ये कैसे आ रहा है ये देख, यहां पे आपको दिख रहा होगा 10 इंडिकेटर दिख रहा होगा, है ना। ये 10 है। 10 मिनट्स इज फॉर मेजर एंड मार्किंग ऑन ईच यूनिट ऑफ जींस। ठीक है, ये हमने यहाँ बताया हुआ है। और 15 मिनट्स रिक्वायर्ड इज फॉर ईच यूनिट ऑफ टी शर्ट्स, है ना, फॉर मेजर एंड मार्किंग। तो मेजर और मार्किंग के लिए जींस पर टोटल कितना मिनट्स लगेगा? 10x1, क्योंकि टोटल x1 जींस है और एक यूनिट के लिए 10 मिनट्स है, तो टोटल मिनट्स कितना हो गया? 10x1। और उसी तरह से 15 मिनट्स एक टी शर्ट के लिए, टोटल टी शर्ट से x2, तो टोटल कितना हो गया? 10x1 प्लस 15x2। उसको हमने यहां पर लिखा 10x1 प्लस 15x2। अब ये लेस देन इक्वल टू 3000 कैसे आ रहा है सो देख लीजिए। ये जो मेजर और मार्किंग है इसमें टोटल स्टाफ जो है हमारे पास, ठीक है, ये 5 स्टाफ अवेलेबल है और हर स्टाफ कितने देर काम करेगा? 10 घंटे काम करेगा। 10 घंटा। हाँ, सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल इज 50 आवर्स। 5 into 10, 50 आवर्स अवेलेबल। 50 आवर्स को हमने मिनट्स में चेंज कर दिया, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज 5 6 30, सो 3000, है ना, यानी 3000 मिनट्स। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि ये जो मिनट्स होगा ये लेस देन इक्वल टू 3000 होगा, क्योंकि जितना मिनट्स अवेलेबल है उससे ज्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे, उससे कम ही काम कर पाएंगे। ठीक है, so the first constant is obtained like this: 10x1 plus 15x2 is less than equal to 3000। ठीक है, सिमिलरली अब अगर हम आगे चलते हैं, किसके लिए आगे? नेक्स्ट यहां देखिए, कटिंग के लिए। कटिंग के लिए 20 मिनट्स फॉर जींस है, तो 20x1, यहाँ पर 10x2 हो जाएगा, 20x1 प्लस 10x2। और कटिंग के लिए टोटल आवर्स अवेलेबल उसी तरह से 5 into 10, 50 आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 3000 अगेन। सो द सेकेंड कांस्टेंट इज दिस 20x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 3000। This is cutting hour constant। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब जो थर्ड कांस्टेंट है वह स्टिचिंग के लिए।
स्टिचिंग के लिए 30 मिनट्स रिक्वायर्ड है हर एक जींस के लिए, और टोटल नंबर ऑफ जींस इज x1, so it is 30 x1 minutes on jeans and 20 minutes required for each t-shirt. Total number of t-shirts is x2, so total number of minutes required for t-shirt is 20 x2. ठीक, and this number of minutes total is less than equal to 6,000 because there are total 10 staffs for stitching, 10 staff, और हर स्टाफ 10 आवर्स काम करेगा, तो 100 आवर्स अवेलेबल, 100 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट्स, 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6000 मिनट्स। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 60, ये 6000। ये समझ में आ रहा है तीसरा कांस्टेंट? यस सर। हाँ, एंड सिमिलरली फॉर फिनिशिंग आवर, तो 20 मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ जींस, so total number of minutes required for the jeans is 20 x1, again 10 minutes required to finish each unit of t-shirt, so total number of minutes required to finish the t-shirts is 10 x2, so total number of minutes required to finish all the jeans and t-shirts is 20 x1 plus 10 x2, or this should be less than equal to 6,000 because यहां पर क्या है, एक मिनट आप रुकिएगा, मैं जरा इस पर, हाँ यस, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि ये जो 20 मिनट्स है हर एक जींस के लिए है, टोटल नंबर ऑफ जींस x1 है, तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड टू फिनिश द जींस इज 20 x1। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड टू फिनिश द टी-शर्ट्स इज 10 x2 बिकॉज 10 मिनट्स की जरूरत है एक टी शर्ट के लिए, टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स x2 है, मल्टीप्लाई किया 10 x2 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड to finish the jeans and t-shirts is 20 x1 plus 10 x2, और टोटल नंबर ऑफ स्टाफ्स जो अवेलेबल है फिनिश करने के लिए वो 10 है। हमने आपको वो डेटा दिखाया था, आपने नोट किया होगा, तो उसमें 10 स्टाफ्स को हमने दिखाया था फिनिशिंग के लिए, 10 स्टाफ दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, और 10 स्टाफ्स विल वर्क 10 आवर्स, 100 आवर्स, है ना, सो द टोटल नंबर ऑफ आवर्स विल बी 100, 100 आवर्स को हम मिनट्स में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 6000 मिनट्स हो जाएगा, होगा ना? होगा। यस, सो दिस इज व्हाई दिस इज 6000, और ये टोटल नंबर ऑफ मिनट्स जो यहां पर हमने लेफ्ट साइड लिखा है, दिस कांट एक्सीड 6000 बिकॉज इतने ही अवेलेबल है, तो इससे ज्यादा हम काम कर ही नहीं सकते। दिस इज व्हाई दिस इज लेस देन इक्वल टू 6000। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। हाँ, तो इस तरह से फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट, फोर्थ कांस्टेंट हमने तैयार किया। अब देखिए फिफ्थ कांस्टेंट, द मार्केट डेली डिमांड वाज गिवन 100 फॉर जींस, यानी जींस हम 100 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, दैट वाज मैक्सिमम। टेबल में मैंने आपको बताया है, ये देखिए, दिस इज मैक्सिमम 100 फॉर जींस एंड 200 फॉर टी-शर्ट्स, ये मैक्सिमम है, हम उससे कम या उस नंबर तक मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। 100 से ज्यादा हम
मार्केट में दे नहीं सकते हैं, उतने ही का डिमांड है। और 200 टी शर्ट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि इतने ही का डिमांड है। ठीक है, सो x1 इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड x2 इज लेस देन इक्वल टू 200। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ, इसी बात को हमने यहां पे लिखा, x1 लेस देन इक्वल टू 100, x2 यहाँ पे x2 होगा, ये बाय मिस्टेक x1 लिखा हुआ है, इसको x2 मानिएगा, x2 लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, एंड द नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट सेज कि अगर हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, कोई जींस और टी शर्ट्स नहीं बनाएंगे, तो कम से कम 0 होगा, उससे कम नहीं हो सकता है। सो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ नहीं बनाएंगे तो 0 बनाएंगे, बनाएंगे तो 0 से ज्यादा होगा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए, कोई परेशानी इसमें? नहीं। तो इस तरह से ये रिसर्च मॉडल हमने तैयार किया। जो केस स्टडी है, जो केस हमने लिया, उस केस का कॉरेस्पॉन्डिंग रिसर्च मॉडल ये तैयार हुआ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। अब इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे? सो देखिए, ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हर कांस्टेंट के लिए हम अलग अलग ग्राफ लाइन ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना हमने सीखा है। अब जैसे इसको x1 को 0 कर देंगे तो 15, x2 3000, x2 इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, यानी 0 200 आएगा। फर्स्ट पॉइंट 0 200, यहां देखिए 0 200 ये वाला पॉइंट है। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, यहाँ हमने मार्क कर दिया है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का ये लाइन है, यहाँ पे y एक्सिस को 200 पे कट कर रहा है। ठीक, 0 200। और अगर हम x2 को 0 मान लें, x2 को 0 मान लेंगे तो 10x1 इक्वल टू 3000, तो x1 इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 300 आएगा। ठीक, तो यहां देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है ये 300 0 पर कट कर रहा है, दिस इज 300 एंड 0। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ ये हो गया। अब उसमें लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू टाइप, ये कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू टाइप है, तो कौन सा रीजन उसका सॉल्यूशन होगा? हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है कैसे सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं। तो कौन सा रीजन उसका सॉल्यूशन रीजन होगा? उसमें x1 x2 के जगह पर 0 0 रखकर देखा, 0 0 रखकर देखा तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 3000, सो इट इज सेटिस्फाइंग, ओरिजिन विल सेटिस्फाई इट। अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा तो जो साइड में, के साइड वाला रीजन, ओरिजिन के साइड में रहेगा। हाँ यही हमने यहाँ पर एरो हेड दे दिया, ये एरो हेड दे दिया। ठीक है, ये रीजन हो गया। उसी तरह से हम सारे कांस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका भी उसी तरह से। इसमें x1 को 0 करेंगे तो x2 इक्वल टू 300 आएगा। ठीक, और x2 को 0 करेंगे तो x1 इक्वल टू 150 आएगा। देख लीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, x2 को 0 किया तो यहाँ पर 150 आ गया x1, और x1 को 0 करने पर x2 300 आ गया, उसको हमने यहाँ पे दिखाया, और ये ग्राफ लाइन बन गया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, और वो 0 0 को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इस तरफ का रीजन, इस तरफ का रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया। सो सिमिलरली जैसा हमने पढ़ा हुआ है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं,
हम लोगों ने पढ़ा है 2-3 दिनों तक, ठीक है। उसको फॉलो करके हर इक्वेशन का ग्राफ, इक्वेशन नंबर 1 का ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 का ये हो गया, उसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 का आप यहां देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 किसके लिए, 30x1 + 20x2। अगर हम x2 को x1 को 0 करते हैं तो 20x2 = 6000, तो x2 = 6000 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 300 आ जाएगा। और अगर हम x2 को 0 करते हैं तो 30x1 = 6000, तो x1 = 200 आ जाएगा। तो देख लीजिए 0 200 और 300 0, ये पॉइंट इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये देख लीजिए 0 300 और ये है 200 0, इस होकर क्रॉस करेगा। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 का ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, जो हमने ये मॉडल तैयार किया है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ग्राफ ड्रॉ करके भी देखिएगा। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं, हाँ इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये 4th कांस्टेंट, 5th कांस्टेंट कहता है 100 या उससे कम, 6 कहता है 200 या उससे कम, या आप यहां देख लीजिए 100 और उससे कम, x1 का ये 5th कांस्टेंट है, x1 <= 100, तो ये इसके इस तरफ नहीं जा सकता है, आगे नहीं जा सकता है, एक ये आगे नहीं जा सकता है, लेफ्ट साइड ही रहेगा, बिकॉज <= 100 है, तो ये 100 पॉइंट से लेफ्ट साइड ही रहेगा। फिर x2 <= 200, तो 200 से नीचे ही रहेगा। और x1 > 0, तो y एक्सिस के राइट साइड, x2 > 0, तो ये जो x एक्सिस होता है, x2 एक्सिस, x1 एक्सिस ये है, इसके ऊपर, यानी ये हो गया हमारा कॉमन रीजन, ये कॉमन रीजन है। यहां पर हमने इसका रेड कलर में OABCD लिख दिया, दिस इज द कॉमन रीजन, जैसा कि हम लोग पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं। ये तो केवल एक केस था, ठीक है, तरीका वही रहेगा सॉल्व करने का। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फाइनल ग्राफ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ग्राफ तो हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं, हम लोगों ने सीखा भी है, ठीक। और इसको देख करके उसको आप मैच कर लीजिएगा, जो आप ग्राफ ड्रॉ करें किए हैं, सो ये हमारा हो जाएगा फिजिबल रीजन, जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, OABCD। सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेकर उस पर मैक्सिमम वैल्यू, उस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल कर देखना होगा। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स है, वो ओरिजिन का तो 0 0 होगा, और ए का देख लीजिए ये 100 0 है, क्लियर है, यहाँ पर 100 0, ठीक। डी का यहाँ पर 0 200 आएगा, डी का 0 200, पहले मैं आपको इसको दिखा 0 0, बी का, ए का 100 0 और डी का देखिए 0 200। अब बच गया बी और सी, इसको यहां देखिए, बी और सी के लिए हम क्या करेंगे, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 2, यहाँ हमने जो लिखा है इससे बिल्कुल क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को जब सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि कैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब 5 और 2, 5 और 2 आप यहाँ देखिए, ये 5 और 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x1 x2 का वैल्यू आएगा। देखिए 5 का ये x1 आप इसमें रख करके देख लीजिए, x2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब b का वैल्यू निकाल लेंगे, b का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, और c का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए c का लाइन देखिए, एक लाइन ये है 1 और c को इंटरसेक्ट करने का जो दूसरी लाइन है वो है 2, यानी 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो c का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। ये तरीका आपको मैंने बताया हुआ है, करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा दोबारा। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला, और कोऑर्डिनेट्स ये है O A B C D, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू हमने अलग अलग निकाला। अब यहां देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका ये 100x1 प्लस 80x2, 100x1 प्लस 80x2, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू हमें निकालना है। एक मिनट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहां पे लिख देता हूं z इक्वल टू 100x1 प्लस 80x2, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पर 0 0 पे तो x1 के जगह पर 0, x2 के जगह पर 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ओरिजिन इज 0। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ए पे x1 का वैल्यू 100, x2 का वैल्यू 0, तो 100 को x1 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज टोटल 10,000। फिर ZB ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू B पे x1 का वैल्यू 100, x2 का वैल्यू 100, दोनों 100 100 है, तो 100x1 100 into 100 plus 80 into 100, 80 into x2 is 100, so 100 से मल्टीप्लाई, और इस तरह से इसको ऐड करके 18,000 लाए। उसी तरह से ZC निकालेंगे, ZC पे यहाँ देखिए C पे 75 is the value of x1 and 150 is the value of x2, so इसको 100 into 75 किया, 75 x1 का वैल्यू है इसलिए 75 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 80 मल्टीप्लाइड बाय x2 होना है, x2 का वैल्यू 150 है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया, 19,500 आया। और ZT D पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू यहाँ देखिए x1 0 और x2 200, तो 100 into 0 plus 80 into 200, दिस इज 16,000। बताइए यहां तक कोई परेशानी? नहीं। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमाइज वैल्यू हमें क्या करना था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, क्योंकि प्रॉफिट का केस था, तो यहां हमें मैक्सिमाइज करना था, ये मैक्सिमाइज करना था। देखिए मैक्सिमाइज z इक्वल टू 100x1 प्लस 80x, ठीक है, तो इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। इसमें
जितने भी वैल्यूज है ओरिजिन से लेकर डी तक में, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू यहां है 19,500. So the maximum value of the objective function is 19,500, which exists at the point C. Means this point C is the optimal solution of this LPP. Means x1 equal to 75 and x2 equal to 150. इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आता है 19,500. ठीक है, ठीक है, बताइए. यस सर, ठीक है, ठीक है. The optimal solution is given by, यहाँ पर हमने लिखा optimal solution is given by x1 equal to 75, x2 equal to 150, and the maximum value of the objective function is 19,500. ठीक है, अब आप आगे बढ़िए. इस तरह से कंपनी को क्या करना चाहिए? Company should produce 75 jeans and 150 t-shirts to have maximum profit. हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी को 75 जींस और 150 टी-शर्ट्स प्रोड्यूस करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करता है तो मैक्सिमम डेली प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मैक्सिमम डेली प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ये आ जाएगा 19,500. अगर वो 75 जींस और 150 टी-शर्ट्स प्रोड्यूस करेगा तो, और ये कर सकता है बिकॉज ये सारे कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है. अब अगर ये मैक्सिमम डेली प्रॉफिट इतना है तो मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन क्या आएगा? इसको, इस प्रॉफिट को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज टोटल वर्किंग डेज इज 25 इन ए मंथ. 25 दिन काम करेगा तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया. टोटल प्रॉफिट मंथली इज 4,87,500. ठीक, अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर. क्या क्या है एक्सपेंडिचर, क्या क्या है? तो 20,000 फॉर मैनेजर, 45,000 फॉर मेजर एंड मार्किंग, 40,000 फॉर कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग. इस तरह से ये सब जो हमने उधर ऐड किया था, ये सारे, ये 9,000 हाउस रेंट, फिर 25,000 डेली डिमांड है, ये 9,000 जो 3,000 वाला 3 स्टाफ है उसका, और ये 9,000 जो हाउस रेंट है वो, और 25,000 जो अदर एक्सपेंसेस हमने उसमें लिखा हुआ था. सो ये सारे को हमने ऐड कर दिया. ठीक है, ऐड करने पर वहां पर भी ट्रायल बारे में भी इसको ऐड करना है. एक्सपेंसेस तो हर जगह सेम है, और टोटल एक्सपेंडिचर of the company is 2,28,000 monthly. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है यार? हाँ. सो हमने क्या किया, इस टोटल एक्सपेंडिचर को इस टोटल प्रॉफिट से माइनस कर दिया. ठीक है, तो 2,59,500 आ रहा है. बताइए, यहां तक कोई परेशानी? जी नहीं. अगर ऐसा है, अगर ऐसा है 2,59,500, तो देखिए आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. मंथली नेट सेविंग बाय एलपी टेक्निक
is 2,59,500.